માત્ર 200 રૂપિયા પ્રતિ દિવસ માટે દેશ સાથે ગદ્દારીનું કામ કરતા યુવક ગુજરાતમાંથી પકડાય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે દુઃખ થાય અને થવું જ જોઈએ, પણ એ સવાલ પણ થવો જોઈએ કે માત્ર 200 રૂપિયા પ્રતિ દિવસ માટે દેશ સાથે ગદ્દારી કરવી પડે એવી સ્થિતિ કેમ પેદા થતી હશે। આવા જ એક આરોપીને ગુજરાત એટીએસના એસપી કે સિદ્ધાર્થની ટીમે પકડી પાડ્યો છે અને તેમણે પત્રકારો સમક્ષ ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે। વિગતે વાત કરીએ શું છે સમગ્ર મામલો આ અહેવાલમાં। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે। નમસ્કાર, હું છું આપની સાથે તુષાર બસિયા। નવજીવન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। ગુજરાત એટીએસ અવારનવાર ભારતમાં ઘુસાડવામાં આવતો ડ્રગ ઝડપી લઈ ડ્રગ માફિયાઓને પરાસ્ત કરી રહ્યું છે। એવામાં આજરોજ ગુજરાત એટીએસે એક જાસૂસના આરોપ સાથે દીપેશ બટુકભાઈ ગોહિલ નામના યુવાનની ધરપકડ કરી છે તેવા સમાચાર સામે આવ્યા અને આરોપી દીપેશની માહિતી પીએસઆઈ AR ચૌધરીને મળી હતી અને તેમણે આ મામલામાં તપાસ હાથ ધરતા આ સમગ્ર ભાંડાફોડ થયો છે તેવી પણ માહિતી મળી રહી છે। જેમાં દેવભૂમિ દ્વારકાના આરંભડા ગામનો રહીશ આરોપી દીપેશ ગોહિલ પાકિસ્તાની એજન્ટને આપણા દેશની સેન્સિટિવ માહિતી મોકલી રહ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે। એટીએસના કહેવા પ્રમાણે દીપેશ ઓખાની જેટી પર કોસ્ટગાર્ડના રિપેરિંગના કામકાજ માટે જતો હતો। દરમિયાન દીપેશને ફેસબુકમાં સાહિમા નામની કોઈ ફેસબુક પ્રોફાઇલ પરથી રિક્વેસ્ટ મળી અને એ રીતે તે આ એજન્ટના સંપર્કમાં આવ્યો। બાદમાં તેને વોટ્સએપ નંબરની આપલે થઈ અને પાકિસ્તાનથી ઓપરેટ થતા આ નેટવર્ક માટે કામ કરવા માટે તેને તૈયાર કરવામાં આવ્યો અને જેટીની માહિતી મેળવવા માટે તેને રૂપિયા 200 પ્રતિ દિવસ આપવાનો વાયદો કરવામાં આવ્યો। આમ દીપેશે રૂપિયા 200 માટે માત્ર રૂપિયા 200 માટે દરરોજ સવારે કામ પર જતા સમયે જેટી પર રહેલી કોસ્ટગાર્ડની બોટના નામ પર અને નંબર આપવાનું શરૂ કરી દીધું હતું આ એજન્ટને અને આરોપ છે કે દીપેશને 7 થી 8 મહિના સુધીમાં આ કામ પેટે રૂપિયા 42,000 જેટલા ચૂકવાઈ પણ ગયા હતા, એ પણ તેના મિત્રોના બેંક એકાઉન્ટમાં, કારણ કે દીપેશ પાસે પૈસા લેવા બેંકમાં ખાતું પણ નહોતું। પણ સવાલ એ છે કે રૂપિયા 200 જેટલી મામૂલી રકમની તેના માટે કેટલી મોટી વાત હશે કે કોઈ માણસને દેશ સાથે ગદ્દારી કરવી પડે। વિડીયો જોતા દર્શકમાં લગભગ તમામ લોકો માટે રૂપિયા 200 મામૂલી જ રકમ હશે અને નહીં હોય તો પણ દેશ સાથે ગદ્દારીનું કોઈ પણ સંજોગે કોઈ ભારતીય ન વિચારે કે ન વિચારી શકે। પણ કદાચ થોડા ઘણા એવા ગદ્દારો નીકળે પણ ખરા કે જેને રૂપિયાની જરૂર હોય અને ગદ્દારી દેશ સાથે કરી નાખે, પણ ગદ્દારીની ફી રૂપિયા 200 જેટલી મામૂલી હોય તો શું સમજવું? જુઓ આ મામલે એટીએસના એસપી કે સિદ્ધાર્થ શું કહે છે। वहाँ कोस्ट गार्ड शिप्स का काम करता है, वहाँ का वेल्डिंग का काम, वहाँ अलग अलग दूसरे काम का कार्रवाई करते हैं। वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वहाँ पर एक कर्मचारी है। बेसिक फैक्ट्स ऐसा है कि 3 साल से ये वहाँ का जेटी के पास काम कर रहा है। लास्ट 7 मंथ से पहले उसको फेसबुक में एक सहीमा करके एक पाकिस्तानी फेसबुक अकाउंट, एक लेडी का अकाउंट, फेसबुक अकाउंट को फ्रेंड रिक्वेस्ट किया था जिसमें एक्सेप्ट किया था। तो उसके बाद फेसबुक के माध्यम से ये बातचीत करने लगा। उसके बाद इसको पता चला, उन्होंने फिर व्हाट्सएप में नंबर्स एक्सचेंज किया गया, जिसके बाद थोड़ा बातचीत करने के बाद इनको पता चला कि वो सहीमा जो लेडी है वो पाकिस्तानी नेवी में काम करती है और उन्होंने सामने से बोला कि ओका जेटी में जहाँ पर ये वेल्डिंग का काम करता है वहाँ जो कोस्ट गार्ड की शिप्स स्टेशन होती है, यहाँ पर मूवमेंट होती है, उसका नाम बताया दिया जाए उनके टीम को और उनको यूटिलिटी होगा, उनके जो भी वॉर लाइक सिचुएशन में यूज़ होगा। उस हिसाब से उनको ये ऐसा बात हुआ था कि हर दिन 200 रुपये की हिसाब से उन दोनों के बीच में बातचीत चली। तो लास्ट 7 मंथ्स में हमको पता चला कि 7 वैसे बैंक ट्रांजैक्शंस हुआ जिसका टोटल वैल्यू अराउंड 42,000 जो अलग बैंक अकाउंट से इसके 3 दोस्त के बैंक अकाउंट से मिला गया। तो इसके हिसाब से हमको जो बातमी मिला उसके हिसाब से हमने उनको एक पूछपरछ के लिए बुलाया था और उनके फ़ोन को टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हमको पता चला कि वो जो फ़ोन में जिनके साथ ये बात कर रहा था उसका जो आईपी हमने रिकवर किया वो पाकिस्तान का आईपी निकला, जिससे साफ पता चलता है कि जो भी सहीमा नाम से धारण करके बात कर रही है वो पाकिस्तान की तरफ से बात कर रही है। वो जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इनसे लिया जा रहा है और इनको भी प्रायर इन्फॉर्मेशन था
कि ऐसा जो इन्फॉर्मेशन देना बिल्कुल इंडियन सीक्रेसी में इंडियन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो जो देना नहीं चाहिए। और इसके हिसाब से हम भारतीय न्याय संहिता 61 एक्ट सेक्शन 61 एज वेल एज सेक्शन 148 के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट एंड नेशन के अगेंस्ट इनको केस दाखिल किया और इनको अरेस्ट भी किया गया। सर ये जो महिला है सहीमा, उनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि ये पर्टिकुलर बंदा है या इसको हमको कांटेक्ट करना है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको पहले भी ऐसे केसेस हुए थे जिसमें ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करते, ये ओवरऑल ऐसे प्रोफाइल हमारे हिसाब से ऐसे बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स करते हैं और इनमें से वो अटेम्प्ट करते हैं कि कौन कौन थोड़ा वीक है जो हमको पैसे के लालच में ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन बहुत सारे जगह बहुत सारे ट्राई करते होंगे जिसमें से एक दो सफल होते हैं जिसके कारण हम केस करते हैं। सर तकरीबन 1 महीने के आसपास सेम टू सेम केस है। लास्ट 26 अक्टूबर को भी इसी तरह का केस था जिसमें भी कोस्ट गार्ड की ही इंफॉर्मेशन मांगी जा रही थी। गुजरात के एंटी ड्रग्स अभियान के तहत कोस्ट गार्ड जितना एक्टिव पिछले कुछ समय में हुआ है, क्या उसी को लेकर पाकिस्तान इस तरह का ट्राई कर रहा है कि कोस्ट गार्ड को टारगेट किया जाए? जैसे पता वो भी एक रीज़न है। एट द सेम टाइम हम आपको जैसे आपको पता चला है कोस्ट गार्ड अकेला और हम भी कोस्ट गार्ड के साथ बहुत सारे जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं जो जॉइंट इंटेलिजेंस के ऊपर काम करता है। एग्जैक्टली जैसे आपने बोला, एक तो एंटी ड्रग्स का जो हमने ऑलरेडी ड्रग फ्री इंडिया का जो नेशन वाइड हमने चालू रखा, मिशन मोड में काम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट भी उनको इन्फॉर्मेशन ही काम रहेगा। एट द सेम टाइम वॉर लाइक सिचुएशन के लिए इनको ये इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी होगी। इस नंबर से बातचीत हो रही थी, वो इंडियन नंबर था सर कि कैसा? बिल्कुल, जो नंबर वो लिया गया जिनके वो इंडियन नंबर के माध्यम से ही इनसे बात कर रहा है। सर कितने टाइम पहले से ये बातचीत कर रहे थे और क्या डील हुई थी दोनों के बीच में? अराउंड 7-8 मंथ्स पहले से इनका संपर्क में आए थे फेसबुक के थ्रू। उसके बाद ये लोग व्हाट्सएप के माध्यम से बात करना शुरू किया। पर इनका डील ऐसा ही था कि पर डे जब भी ये इन्फॉर्मेशन देगा पर डे 200 के हिसाब से इनको बातचीत चली। फॉर एग्जाम्पल टोटली इन द टर्म्स ऑफ 6000 पर मंथ। सर तो मात्र 200 रुपये के लिए वो इतनी बड़ी यानी जो आप बोल रहे हो कि ट्रैप करता था, दूसरों को इन्फॉर्मेशन देता था, तो उसके पीछे दूसरी कुछ लालच थी कि नहीं? मात्र 200 रुपये के लिए वो करता होगा? मात्र 200 पर हर दिन के लिए। हाँ तो पर महीना 6000 है। तो उसके अलावा भी एक बार आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसके ऊपर जैसे आपके लिए मात्र होगा पर हमारे लिए सबके लिए मात्र होगा, पर उनके लिए उनकी स्थिति के लिए शायद हो सकता है कि उसमें वो लालच में पड़ इसका और कोई बैकग्राउंड मिला है सर? क्रिमिनल बैकग्राउंड कुछ मिला है? अभी के लिए नहीं है, पर उनको प्रायर बिल्कुल इन्फॉर्मेशन था, ऐसा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और जिससे ये बात किया था साहिमा, उन्होंने सामने से इनको बोला गया कि ये पाकिस्तान नेवी से है और ऐसा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए, हमारे कंट्री आपके कंट्री के अगेंस्ट हमारे लिए फ़ायदा लायक है। उसके बावजूद भी बिना पैसा के लालच ना लालच बात की बात है, पर उसके बावजूद भी इसने दिया, उसके कारण ये केस बना। सर पेमेंट किस तरह से हो रहा था? जो दी गई हो महत्व की इन्फॉर्मेशन जो पहुंचाई गई हो यहाँ से वहाँ तक, कोस्ट गार्ड का शिप्स के नाम्स और जिस डेट में भेजा वो इन्फॉर्मेशन दिया गया जो हमने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमने रिट्रीव किया। सर पेमेंट जो था वो किस तरह से किया जा रहा था? तो ब्रीफली बता दिया जाए तो वो भी डमी अकाउंट से ही मोस्टली भेजते होंगे, उसके अगेंस्ट तपास चलेगा जो भी बैंक अकाउंट से आया। पर इसके पास जो आया था, इसके पास खुद का बैंक अकाउंट नहीं था तो इसके दोस्त के बैंक अकाउंट में दिलवाता था और इन दोस्त से कैश लेता। तो बेसिकली 3 साल से उस ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है जो काम कर रहा है। इसमें सर वीडियो वगैरह भी और कुछ भी जानकारी शिप्स के अलावा भी एक्चुअली क्या है, फ़ोन ये लोग मोडस ऑपरेंडी ऐसा यूज़ करते हैं, डिसअपीयरिंग मैसेजेस यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए इतना टेक्निकल एनालिसिस से हम रिकवर हुआ, नाम तो भेजता है, उसके ऊपर जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन में है। सर ये वीडियो कॉल में बातचीत ऐसा कुछ करते हैं? अभी तक ऐसा हमको पता नहीं चला, पर ये सारे इन्वेस्टिगेशन बात हुई थी सर की सिर्फ चैटिंग में, प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन में ये पता नहीं है, पर जो भी है उनका इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन एज वेल एज फोन से जो मिलता है उसके ऊपर डिपेंड है। इसका बैकग्राउंड सर वैसे नॉर्मल है, अनमैरिड है, अराउंड 33 ईयर ओल्ड मेल है, नॉर्मल। एजुकेशन कितना पड़ा? एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, पर हाँ रिसेंटली। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई